Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is macroeconomics as well as Indian economic development, right? So from the previous few classes we were continuously revise the chapters of your macroeconomic because many of the students are facing the problem solving the numerical question as well as in the foreign exchange rate, balance of payment, aggregate demand, aggregate supply, income determination and the multiplier and so on. Okay, so we have revised more of the time. I think 3 to 5 times we have already done all these chapters one by one. But from the previous you have also give the 2 RTs of as well as 2 pre-board, but after that we are again moving to the solve the sample papers which is issued by your CBSE. Okay, so it is your latest CBSE sample paper which is issued by the CBSE. Okay, so from the previous class we have already started to solving the CBSE sample paper, in which first of all I have told to you general instruction. So how many questions will be come in your exam? So I have already told that there are 34 questions will come in your examination. 17 questions from your macroeconomics and 17 questions from your Indian economic development. I have already told to you all the examination pattern, the questions of 1 marks, 3 marks, 4 marks and 6 marks, and answer should be to the point and the very brief. Okay, so from the in the last class we have already discussed with the till the fourth question. First one is inventory is a fill in the blanks concept, whereas the change in the inventory is a fill in the blank concept. So I have already told that the inventory, which is we talk about the point of time, so it will be the stock, and change in inventory means the unsold stock which is changing, means ki inventory may be increase or may be decrease, so it will be the flow concept, right? Next we have one question is in or. If in an economy the value of net factor income from abroad is given as the 200 and the value of factor income to abroad is given 40. So what will be the value of factor income from abroad? So we have calculated this, that is net factor income from abroad is equal to the factor income received from abroad minus factor income paid to abroad. To receive from abroad factor income, net factor income from abroad is 200, paid to abroad is minus 40. So factor income received from abroad is 240. Okay, we have already done. Next one is, that is question number 2. So in the present COVID-19 times, many companies have raised their concern that Indian economy may have to face a deflationary situation due to reduced economic activities in the country. Suppose you are a member of the high-powered committee constituted by the Reserve Bank of India. So you have suggested that as the supervisor of the commercial bank of the money supply, then fill in the blanks, of the money supply be ensured by the Reserve Bank of India. इसमें कह रहा है कि प्रेजेंट कोविड टाइम में क्या है कि बहुत सारी कंपनी ये क्वेश्चन रेज कर रही हैं कि ये सामने प्रॉब्लम है कि ये देख रही है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो डिफ्लेशनरी सिचुएशन में जा रही है, बिकॉज ड्यू टू रेड्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे यहाँ हो रही थी पहले के टाइम में वो कम हो गई क्योंकि कोविड की वजह से. अब इसमें क्या है, वो लोग बहुत टेंस्ड हैं और मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा है कि इस कंडीशन पे एज आपको रख दिया जाए, मतलब आपको सुपरवाइजर बना दिया जाए कमर्शियल बैंक का, आप उनकी जगह पे क्या करोगे? हाई पावर्ड कमिटी का आपको मेंबर बना दिया जाए. बिकॉज सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ द हाई पावर्ड कमिटी जो आरबीआई ने कंस्टिट्यूट की है, जो आरबीआई ने बनाई है, उसका आपको एक मेंबर बना दिया जा रहा है. तो आप in that situation what you will do when there is lack of economic activities? So you have suggested that as the supervisor of the commercial bank, कि आपको सजेस्ट किया जा रहा है एज द सुपरवाइजर आप कमर्शियल बैंक के, तो फिल इन द ब्लैंक्स दैट ऑफ द मनी सप्लाई बी इंश्योर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि मनी को क्या किया जाएगा, इकोनॉमी से रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए और मनी को ज्यादा से ज्यादा रिलीज किया जाए. आपको पता है डिफ्लेशनरी सिचुएशन का मतलब क्या होता है, व्हेन द एडी इज लेस देन द
AS, मतलब डिमांड कमोडिटी की कम हो गई है एज कंपेरिजन टू सप्लाई। डिमांड कम क्यों हो गई है? बिकॉज दे डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, दे डोंट हैव इनकम। अब अगर मनी सप्लाई कम हो गई है, अगर इकोनॉमी में ये सिचुएशन आ गई है, इसको हमें रेज करना है, तो इन दैट सिचुएशन देयर शुड बी इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ेगी तो लोगों के पास मनी आएगा, जब मनी आएगा तो लोग एक्सपेंडिचर भी करेंगे, कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर। सो देयर शुड बी रिलीज इन दी मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का क्या होना चाहिए? रिलीज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू, सप्लाई ऑफ मनी की बात हम लोग जब करते हैं तो वो क्या होता है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। जो पब्लिक, क्वेश्चन नंबर 3, इट इज द क्वेश्चन नंबर 3, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। जो पब्लिक करेंसी हेल्ड करती है, करेंसी हेल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो करेंसी क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्ड करती है। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। जो भी करेंसी कौन कर रहा है? पब्लिक कर रही है। और डिमांड डिपॉजिट विद दी कमर्शियल बैंक, पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट जो भी कमर्शियल बैंक के साथ हो रहा है वो, एंड द करेंसी हेल्ड इन दी गवर्नमेंट अकाउंट, की जो भी गवर्नमेंट के अकाउंट में हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी करेंसी हेल्ड किसके थ्रू हो रही है? पब्लिक के थ्रू। एंड डिमांड डिपॉजिट जो भी आपका कमर्शियल बैंक के साथ हो रहा है, वही आंसर। सो आंसर the option third is the right answer. Okay, so you have to write that line on in the answer, right? Next question is identify the correct pair of the formula from the column 1 and 2. So current account surplus, here the current account surplus is given as the receipt is less than payment, and so you have to identify the correct pair. So current account surplus, it is given here. Second one is current account surplus is receipt is greater than payment. Balance current account is given as receipt is not equal to payment. And last one is current account deficit. It is given like receipt is less than or equal to payment. ठीक है, तो ये 4 आपके थे। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना था कौन सा करेक्ट पेयर है। तो आपको पता है करेंट अकाउंट सरप्लस सिचुएशन होती है व्हेन रिसिप्ट, जो इनकम हो रही है वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेरिजन टू पेमेंट। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट, सो यू हैव टू राइट ओनली दैट पॉइंट। ओके, सो टिल हियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, राइट? सो फ्रॉम द क्वेश्चन 5 वी विल स्टार्ट इन द टुडेज क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so let's start with the question number 5, that is identifying which of the following statement is true. Okay, यहाँ पे identify करना है कि कौन सा statement true है। पहला दे रहा है a flexible exchange rate system gives the government more flexibility to maintain the large stock of foreign exchange reserve. Next कह रहा है in the managed floating exchange rate system, the government intervened to buy and sell the foreign currency. Okay. Third one is in managed floating exchange rate system, the central bank intervened to moderate exchange rate fluctuation. And the last one is in the fixed exchange rate system, market forces fix the exchange rate. देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे 3 जो है टर्म्स वो समझने हैं। पहला टर्म है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे जो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कौन डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट। ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और दी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम।
which is done by the market forces. इसको कौन करता है? मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन होता है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, राइट. तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम is done by the foreign exchange rate system. Foreign exchange determine the government. Flexible और the floating exchange rate system में market forces जो होते हैं, demand and supply, according to that the exchange rate is determined. And the last one is managed floating. जो मैंने आपको बताया है, managed floating कहाँ है, रेगुलेट होता है, इंडिया में होता है. managed floating exchange rate system, because ये क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. क्यों? बिकॉज इसमें क्या होता है, पहले क्या होता है कि इसमें सबसे पहले ये जो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जहाँ पे रेगुलेट होता है, वहाँ पे जो भी एक्सचेंज रेट है वो कौन डिटरमाइन करता है? पहले गवर्नमेंट के थ्रू डिटरमाइन होता है, गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है. बट अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं हो पाता है, गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं कर पाती है कि कहाँ पे इक्वल होगा, उस सिचुएशन पे क्या होता है? इंटरवेंशन किसका हो जाता है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली होता ये है सिंपल सा कि पहले यहाँ पे डिमांड एंड फोर्सेस के अकॉर्डिंग छोड़ दिया जाता है. मतलब मार्केट फोर्सेस यहाँ पे डिटरमाइन करती हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा. कॉम्बिनेशन इसीलिए बोला जा रहा है कि पहले एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करेगा? जो भी मार्केट फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई, उनके थ्रू क्या होता है? कंट्रोल नहीं होता है. देन देयर इज इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है. और जो भी एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये सब गवर्नमेंट के अंडर कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. ये सारी मनी से रिलेटेड, मॉनेटरी फंड से रिलेटेड सारे जो भी फंक्शन है वो कौन करता है? आरबीआई करता है. अब इसमें पहला देखिए क्या रहा है, द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गिव द गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी. और हमने पढ़ा है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में किसका रोल है? डिमांड एंड सप्लाई का. तो पहला आपका ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. सेकेंड कह रहा है, इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द गवर्नमेंट इंटरवेन टू बाय द एंड सेल द फॉरेन करेंसी. गवर्नमेंट इंटरवेन कर रही है. और मैंने बोला कि मैनेज फ्लोटिंग में गवर्नमेंट के थ्रू कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती है. फॉरेन करेंसीज को बाय और सेल का भी काम नहीं हो रहा है. थर्ड है, इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक इंटरवेन. सेकेंड वाला भी गलत हो गया था. थर्ड कह रहा है, इन मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट द सेंट्रल बैंक इंटरवेन टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. जो भी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हो रहा है इसमें सेंट्रल बैंक क्या कर रही है? इंटरवेन करी. मैनेज फ्लोटिंग में आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक. एंड द लास्ट वन इज इन द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस फिक्स एक्सचेंज रेट. और फिक्स एक्सचेंज रेट में हमने पढ़ा है गवर्नमेंट. दैट मीन्स फोर्थ वाला भी गलत हो गया, जो सही है दैट इज थर्ड. तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, फिफ्थ का, अगर आप लोग क्या करोगे? थर्ड ऑप्शन को टिक कर दोगे, थर्ड ऑप्शन कर दोगे, दैट थर्ड वन, दैट आपको 1 नंबर, यू गॉट 1 मार्क्स. एकदम सिंपल सा है. बस आप लोगों को इतना सिंपल, जब इतनी बार आप लोग पढ़ लिया ना, जितनी बार पढ़ेंगे कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपकी बुक से बाहर आएगा. जो चीज़ आप लोग इतना रिवीजन टेस्ट में, जो प्री बोर्ड के पेपर्स दे रहे हैं, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, इतने सारे एग्जाम देने के बाद आप लोग जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार पढ़ेंगे, वही सेम चीज़ आपको बार बार मिलेगी. उससे ज़्यादा बुक से बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला है. सब कुछ बुक में ही है. बट मेन करना क्या है, आपको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार पढ़ोगे, वो उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा. राइट. तो इसका आंसर भी हमें पता चल गया, फिफ्थ का सी. आप लोग सी, जैसे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लिखा आपने, फिफ्थ का आंसर में सी. और सी में फिर जो भी लाइन है उसकी वो एक्सप्लेन कर दोगे. लाइन क्या दी है? इन द, ऐसे लिखना है आपको, मैनेज्ड. देखिए आपको जैसे आंसर लिखना है मैं पूरा वैसे बता रही हूँ. इन द मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम सेंट्रल बैंक. द सेंट्रल बैंक आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए सेंट्रल बैंक इंडिया का है, दैट इज आरबीआई. द सेंट्रल बैंक इंटरवेन
टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट सिस्टम। इतना आंसर आपको लिखोगे, देन यू गॉट 1 मार्क्स। 1 मार्क्स आपके हाथ में। ये सब चीजें एकदम सिंपल से है, बस आपको पढ़ने की है, पढ़ेंगे बस समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। सो एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क। जो इंडिया की रियल एस्टेट की कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो रिसीव की है रेंट फ्रॉम गूगल। गूगल से उसने क्या किया है, रेंट को रिसीव किया है इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में कोई रियल एस्टेट इंडिया की कंपनी है, रियल एस्टेट जो ये सारे बिल्डिंग्स का काम करते हैं, लैंड का काम करते हैं, ये क्या करी, रियल एस्टेट कंपनी इंडिया की है, उसने क्या किया है, रिसीव किया है रेंट, पैसा रिसीव किया, रेंट एज क्योंकि उन्होंने लैंड को हायर किया था गूगल ने, उन्होंने क्या किया है, न्यूयॉर्क में उसको पेमेंट किया है। न्यूयॉर्क में जो कंपनी है गूगल, वहाँ पे रियल एस्टेट कंपनी है इंडिया की, वहाँ से उनको पैसा मिला है। सो दिस ट्रांजेक्शन वुड रिकॉर्डेड ऑन, ये जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्डेड, क्वेश्चन नंबर 6, रिकॉर्डेड ऑन साइड ऑफ अकाउंट। यही आपका क्वेश्चन है। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि इंडियन रियल एस्टेट कंपनी है, उसने क्या किया है, रिसीव किया है रेंट, कहाँ से, गूगल से। गूगल जो है वहां से, और वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अब ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा और किस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, जिसमें पहला ऑप्शन दे रहा है आपके पास क्रेडिट एंड करेंट, क्रेडिट एंड करेंट, बी इज क्रेडिट एंड कैपिटल, क्रेडिट एंड कैपिटल, थर्ड वन द सी इज डेबिट and capital, and the fourth one is that is D, debit and current, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें दे रहा है कि सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि रियल एस्टेट कंपनी इंडिया की, उसने क्या किया है, एक पैसा रिसीव किया है, रेंट रिसीव किया है, कहाँ से रिसीव किया है, गूगल से रिसीव किया है, जो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, वहाँ से रिसीव किया है। तो ये जो है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, इसको हम लोग किस साइड में, किस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, वेदर इट विल रिकॉर्डेड इन द कैपिटल साइड और द करेंट साइड, ठीक। इसको हम लोग किस साइड रिकॉर्ड करेंगे। अब आप लोग याद करिए, क्रेडिट हम लोग कब करते हैं, जब हमारी इनकम होती है, इनफ्लो हो रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। अब हम रियल एस्टेट से हमें रेंट मिल रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, इनकम हो गया। मतलब सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, इनकम हो गया, तो दैट मीन्स इट विल रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। डेबिट कब होता है, जब हमारी कंट्री से मनी आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में निगेटिव साइड रिकॉर्ड करते हैं, बट ये हमारे लिए पॉजिटिव है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि डेबिट और डेबिट, ये वाला दोनों ऑप्शन हमारा नहीं होना है, एकदम नहीं होना है। सबसे पहले जब ऑप्शन ऐसा आया करे तो उसको क्या करिए, हटाया करिए कि कौन सा एकदम नहीं हो। ये याद करिए कि इनकम, रेंट हमें मिल रहा है, रिसीव कर रहे हैं रेंट, अगर यही हो गया रेंट पेड कर रहे हैं, तब हमारा पैसा बाहर जा रहा है, तब डेबिट की चांसेस हो जाएंगी, क्रेडिट को हम हटा देंगे, ठीक। ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि रियल एस्टेट कंपनी से हमें रिसीव कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, मतलब अब आप याद करिए करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं। करंट अकाउंट में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड द इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचिए करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग्स करते हैं, रीपेमेंट करते हैं, जो असेट एंड लायबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमें इनकम हो रही है, इनकम मिल रही है, कैसे, हमने इन न्यूयॉर्क इन्वेस्टमेंट किया था, दैट मीन्स वो करेंट अकाउंट। तो आंसर कौन सा हो गया, ए, क्रेडिट, रिकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा ऑफ करेंट अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट साइड और करेंट अकाउंट में ये सिंपली रिकॉर्ड हो जाएगा, बिकॉज
हम लोग क्या है, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये डेबिट सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा आपका। अब आप लोग अपने आंसर में बुक आंसर क्वेश्चन नंबर 6 आंसर लिखोगे ए क्रेडिट एंड करेंट एंड यू गॉट 1 मार्क्स। आपको 1 मार्क्स मिल गया। एक सिंपल सा देखिए 6 क्वेश्चन तक हम लोग ने कर लिया। उसमें कहीं ऐसा लगा आपको कि अरे कितना हार्ड क्वेश्चन है, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे? ये बस आपको एक जो फियर है पेपर देखने का, बस वो है। उसको पेपर पढ़ोगे, थोड़ा सा काम होके पेपर पढ़ना पड़ता है, थोड़ा शांत होके पेपर पढ़ना पड़ता है। जो भी सारा फ्लक्चुएशन माइंड डाइवर्ट हो रहा है उसको छोड़ के हमें पेपर को जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना जल्दी आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि सारा पेपर सारा आंसर आपको उसी पेपर में ही होता है, कुछ बाहर नहीं होता। बस आपको थोड़ा सा उसको सोचना पड़ता है, राइट। अब हाँ ठीक है, 1 क्वेश्चन दैट इज 6। हाँ देखिए एक क्वेश्चन जो है 6 में ही आपको 6 में ही आपको एक और में भी क्वेश्चन है। और में क्वेश्चन है कि इट्स नॉट अ और 7 8 9 10 सॉरी और में नहीं है ये। आपको ये क्वेश्चन क्या दिया है, एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को आपको रीड आउट करना है, पढ़ना है और उससे आपको आंसर को निकालना है, बस वही क्वेश्चन है। अब देखिए आपको इकोनॉमिक्स में भी पैसेज मिल रहा है। अब पैसेज में जैसे इंग्लिश में आप लोग आंसर ढूंढ ले, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल लेवल पे सोचना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा सा सोचिए और आंसर को फाइंड आउट करिए। इसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट, जो भी न्यूज रिपोर्ट है उसको पढ़िए एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम 7 to 10 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 का आपको आंसर इसी में से फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले हम लोग पैसेज पढ़ते हैं जो भी दिया है, फिर 7 8 9 10 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कट रेपो रेट, ठीक है। अब सबसे पहला आपके पास कंडीशन क्या आ गई कि यू हैव टू रिमाइंड अबाउट व्हाट इज रेपो रेट। आपको रेपो रेट याद करना पड़ेगा कि रेपो रेट होता क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, ये सब याद करिए, फिर इसको दिमाग में लगाइए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, रेपो रेट को कट कर दिया है, ठीक है। एक एक सॉल्व करते हैं। सो द लोएस्ट इन एटलीस्ट 15 ईयर्स में अभी तक रेपो रेट सबसे कम किया है, दैट इज 4.4%। ऑल्सो इट reduced the कैश रिजर्व रेशियो, और क्या किया बैंक ने, कैश रिजर्व रेशियो को भी कम कर दिया। मेंटेन बाय द बैंक, जो बैंक मेंटेन करता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 7 ईयर्स, 7 साल में उसने सबसे मतलब कि पहली बार इतना रिड्यूस किया CRR को भी। CRR फॉर ऑल द बैंक्स वाज कट बाय 100 बेसिस पॉइंट टू रिलीज $1.37 लाख करोड़ अक्रॉस द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। CRR क्या है कि कट हो गया, 100 बेसिस पे कट हो गया है, और पॉइंट टू रिलीज डॉलर मतलब रुपीज में 1.37 लाख करोड़ अक्रॉस द बैंकिंग सिस्टम में। सो RBI गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास, ठीक है, जो RBI गवर्नर है डॉक्टर शक्तिकांत दास, प्रिडिक्टेड अ बिग ग्लोबल रिसेशन। उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया, ये देखा कि बहुत बड़ा रिसेशन क्या है आने वाला है, एंड सेड इंडिया विल नॉट बी इम्यून। इंडिया क्या है उस चीज में इम्यून नहीं है, नहीं कर सकती है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ इंडिया रिस्पॉन्ड टू दी सिचुएशन। अब ये पूरा किस पे डिपेंड करता है कि जो भी इंडिया में इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमी में जो भी लोग हैं वो उस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड में वीकेन एंड ईज कोर इन्फ्लेशन, और एग्रीगेट डिमांड क्या है, वीकेन हो सकती है, लोगों की जो ADA कम हो सकती है एंड इन्फ्लेशन हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ये इकोनॉमिक टाइम्स मार्च 27 2020 की एक लाइन दे दिया। अब आप लोग सब समझ लीजिए, ये इतना बड़ा एक आपको पैसेज दे दिया है, इसको आपको पढ़ना है, किसी भी पेपर की हेडलाइन देके अब आपको इसका आंसर निकालना है। अब एप्लीकेशन लेवल पे समझ जाइए कि आपके क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कट इन रेपो रेट बाय RBI। क्वेश्चन लिखते हैं, कट इन रेपो रेट बाय RBI is likely to
likely to the demand for goods and services in the economy। देखिए अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। बात हो रही है डिप्रेशन की। डिप्रेशन मीन्स डेफिशिएंट डिमांड की, डिफ्लेशनरी गैप की, और इकोनॉमी में क्या सिचुएशन आ गई है कि एग्रीगेट डिमांड वीकन हो रहा है। रेपो रेट और सीआरआर को कम कर दिया गया है। अब समझिए इन्फ्लेशन में सीआरआर, रेपो रेट, ये सबको क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। क्यों? जैसे लोगों की जो भी मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाए, लोग लोन लेना कम करें। जब डिक्रीज किया जा रहा है, सीआरआर को कम किया जा रहा है। क्यों कम किया जा रहा है? जैसे कम किया जाएगा, इसके ऑप्शन में दे रखा है आपका इंक्रीज और डिक्रीज, इसी में से दोनों से होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर रेपो रेट में कट हो रहा है, कम किया जा रहा है, तो वो बेसिकली क्यों किया जा रहा होगा? बाय टू इंक्रीज द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। बिकॉज जब अगर रेपो रेट रिवर्स, रेपो रेट सीआरआर कम किया जा रहा है, मतलब कि अब जो रेट है वो क्या होगा, वो कम होगा, जो इंटरेस्ट है वो कम चार्ज होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंगे। जब पैसा लेंगे तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। मनी सप्लाई होने का मतलब है लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करेंगे। यहाँ पे एडी ही कम हो गई, एडी को हमको इंक्रीज करना है। तो अगर रेपो रेट कम होने का मतलब है कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक इंक्रीज कर दिया, यू गॉट 1 मार्क्स, आपको मिल गया 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 8, डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो will lead to, इसमें ऑप्शन दे रहा है fall in AD, no change in AD, rise in AD, and D is fall in general price level। अब समझिए, अभी मैंने वो लाइन पूरी समझाई है, सेम फिर से वही लाइन आ गई आपके पास। अब इसमें क्या है, अब है आपके पास कि सीआरआर अगर कम हो रहा है तो ये क्या होगा, हमें एडी क्या है, एडी एग्रीगेट डिमांड वीकेंड हो गई है। अब जब सीआरआर कम होगा, ये रेट कम कर दिया गया है, मतलब कि इंटरेस्ट क्या होगा, वो कम चार्ज होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। देन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगा, एंड जब डिमांड बढ़ेगा तो देयर इज राइज इन एडी। 1 मार्क्स मिल गया आपको, ठीक है। जैसे ही डिक्रीज इन सीआरआर विल लीड टू राइज इन एडी, एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 7 to 10 पूरा इसी पे बेस्ड है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एडी एक्सीड द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज नोन एज। ये तो एकदम सिंपल का क्वेश्चन है। एक्चुअल एडी जो है वो ज्यादा हो जा रहा है एडी से। एक्चुअल एडी is more than the AD, means that is required AD। जब नहीं दिया रहे तब तक समझ लिया करिए required है। Actual AD is more than the required AD, this situation is inflationary gap। यही क्वेश्चन है आपका। So this situation is called the inflationary gap or the deflationary gap। तो जब actual AD is more than the aggregate demand, ये जो गैप हो जाएगा इन दोनों के बीच का, आपको पता है ये क्या है आपका, ये जो गैप है यही गैप है आपका इन्फ्लेशनरी गैप। ये हो गया आपका इन्फ्लेशनरी गैप। फिल इन द ब्लैंक्स में भर देंगे, देन यू गेट 1 मार्क्स मोर। एक और मार्क्स मिल गया आपको, ठीक।
Next situation, next condition is, last one is the impact of excess demand. The impact of excess demand under Keynesian theory of income and employment in economy. Excess demand का impact क्या होता है, याद करिए. Excess demand का impact होता है कि एम्प्लॉयमेंट की कोई सिचुएशन नहीं हो पाती, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है. जब फुल एम्प्लॉयमेंट ही नहीं जनरेट होगा तो आउटपुट का प्रोडक्शन नहीं होगा, कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं होगा. प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली पूरा प्रेशर किस पे आ जाएगा, प्राइस लेवल पे. तो देयर इज नो चेंज इन दी आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इन दी जनरल प्राइस लेवल. ये आपको पता है. अब इसमें से देखिए, पहला कह रहा है डिक्रीज इन इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल. इम्पॉसिबल, एक्सेस डिमांड है तो कैसे सब फॉल करेगा, गलत है. डिक्रीज इन द नॉमिनल इनकम बट नो चेंज इन द रियल आउटपुट, कि इनकम, लोगों की नॉमिनल इनकम कम हो जाएगी और रियल आउटपुट में चेंज नहीं होगा. ऐसा तो है ही नहीं, इनकम तो बढ़ रही है ना. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल, की इनकम भी, आउटपुट भी, एम्प्लॉयमेंट सब बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट तो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे है. जब एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी फुल है, आउटपुट प्रोड्यूस होगा नहीं. जब आउटपुट नहीं प्रोड्यूस होगा तो इनकम भी कोई जनरेट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ये भी नहीं है. द लास्ट वन इज नो चेंज इन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं होगा, बट देयर इज राइज इन द जनरल प्राइस लेवल. जो भी जनरल प्राइस लेवल है वो इंक्रीज करता चला जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया, दैट इज 4th. नो चेंज in output and employment and increase in general price level. Got it? हो गया इतना क्वेश्चन. तो पूरा ये क्वेश्चन 4 किया, आपको पूरा 4 मार्क्स मिल गया. सोच लीजिए, इट्स सो सिंपल. Okay, so it's all about your today's class. We will continue this for the solution of this sample paper in the next class also. Okay, thank you.